Hello and a big hi to everyone watching this video. So here we are again with the second part of chapter number 13, that is magnetic effects of electric current. I hope you people have been doing extremely well. You have watched the last video. If you have not watched the last video, just go through it because you will not be able to complete the whole chapter before without watching all these videos all together. Okay, so let's continue with the chapter. Before moving further, let's have a look what we discussed in the previous video. In the previous video, we talked about the introduction part of the chapter, magnetic field and the field lines, what are the properties of field lines and all. Magnetic field due to current carrying straight conductor. Okay, in the last video, we discussed about the magnetic field in a conductor when it is straight conductor. Then we studied about right hand thumb rule. Fine. In this video, we are going to talk about magnetic field due to current through a circular loop when the conductor is in a circular loop. Okay. Next, we will discuss about magnetic field due to current in a solenoid. We will discuss about solenoid also. And the last topic in this video will be force on a current carrying conductor in a magnetic field. If a conductor is there in magnetic field, what force it is going to experience? This is what we are going to study about in this video. So let's start with the topic magnetic field due to current through a circular loop. Okay, just to remind you once again, we are studying magnetic effects of electric current. That means what are the magnetic effects experienced by the conductor when electricity is flowing through it? जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सपीरियंस करता है. इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ रहे हैं. तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये है कि अगर एक सर्कुलर लूप है, आपके पास कॉपर वायर है जो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, वो सर्कुलर शेप में है, सर्कुलर लूप में है, तो उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. लेट्स स्टार्ट विद इट. In case of a circular current carrying conductor, the magnetic field is produced in the same manner as it is in the case of a straight current carrying conductor. मैग्नेटिक फील्ड का जो जनरेशन होगा या फिर जो प्रोडक्शन होगा सर्कुलर लूप में, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा स्ट्रेट कंडक्टर में था. In case of a circular current carrying conductor, the magnetic field lines would be in the form of iron concentric circles. सर्कुलर लूप के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी. कंसेंट्रिक मतलब सर्कल्स आफ्टर वन अनदर, एक सर्कल उसके बाद उससे बड़ा सर्कल, फिर उसके बाद उससे बड़ा सर्कल. ओके, इन दिस मैनर, सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेंड टू रिमेन क्लोज व्हेन नियर टू द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर नियर द पेरीफेरी ऑफ द लूप. ओके, अगर सर्कुलर लूप है तो उसके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल पास पास होंगी. दे विल बी वेरी क्लोज एंड डेंस एंड दे विल बी स्ट्रॉन्ग. ओके, and as you go in the between, on the other hand, the magnetic field lines would be distant from each other while they move towards the center of the current carrying loop. मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप के बाउंड्रीज पे बहुत पास पास होंगी, डेंस होंगी और बहुत स्ट्रांग होंगी. बट जैसे जैसे हम सर्कल के सेंटर में जाएंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो बड़ी होती जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी और जो उनकी इंटेंसिटी है वो भी कम होगी. बट दे विल ऑलवेज बी पैरेलल, दे विल नेवर इंटरसेक्ट. ऐसा नहीं है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट करके आगे क्रॉस कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे. नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. इवन एट द पेरीफेरी और द बाउंड्री, हम बाउंड्रीज पे देखें या फिर सर्कुलर लूप के सेंटर में देखें, फाइन, ऑल्दो लाइंस क्लोज हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं, बट दे विल ऑलवेज रन पैरेलल टू ईच अदर. Finally, at the center, the arcs of big circle, the direction of the magnetic field can be identified using right hand thumb rule. जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो बड़े बड़े सर्कल्स का आर्क बनता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम राइट हैंड थंब रूल लगा के निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक field. Let us assume that the current is moving in anti-clockwise direction in the loop. Okay, एक बार हम मान लेते हैं कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. ठीक है, इन दैट केस द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. एट द टॉप ऑफ द लूप, मोर एवर, इट वुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द बॉटम ऑफ द लूप.
ओके, सो इट विल गो वाइस वर्सा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। इट विल बी इन द केस ऑफ दिस सर्कुलर लूप ओनली। नाउ वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से कैसा होता है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होता क्या है? सी solenoid is the coil with many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of the cylinder. Okay, एक solenoid कॉपर वायर से बनता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम किसी आयरन रॉड या फिर आयरन नील के ऊपर रैप कर देते हैं और जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो वो एज ए सोलेनॉइड बिहेव करता है। A current carrying solenoid produces similar patterns of magnetic field as a bar magnet. जो एक सोलेनॉइड का सिस्टम होता है वो बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है जैसा एक सिंपल बार मैग्नेट जनरेट करता है। One end of the solenoid behaves as the north pole and other behaves as the south pole. बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और दूसरा पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। Magnetic field lines are parallel inside the solenoid, similar to bar magnet. सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो बिल्कुल पैरेलल होती है एक दूसरे से, जैसा एक बार मैग्नेट के अंदर होता है, which shows that the magnetic field is same as the points inside the solenoid. सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। The strength of magnetic field is proportional to the number and turns of the magnitude of the current. अब एक सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारे कॉपर वायर के टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार उसको रैप किया गया है। हम उसको जितनी बार रैप करेंगे हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर हम उसको कम रैप करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक होगा। By producing a strong magnetic field inside the solenoid, magnetic materials can be magnetized. Magnet formed by producing magnetic field inside the solenoid is called electromagnet. हम solenoid को एक electromagnet भी बोल सकते हैं। Now why electromagnet? Because this solenoid or this system is going to behave like a magnet. जब हम किसी आयरन रॉड के ऊपर कॉपर वायर रैप करके उसमें करंट फ्लो करते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो दिस आयरन रॉड हैज़ टर्न्ड इनटू मैग्नेट जस्ट ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम इसको एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हैं। नाउ कम बैक टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। सी Fleming's left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, Fleming's right hand rule, electric generator in domestic electric circuits, they all are dependent on electromagnet. See, an electromagnet consists of a long coil of insulated copper wire wrapped on a soft iron core. जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि एक सॉफ्ट आयरन को और एक आयरन रॉड के ऊपर जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे पास यहाँ दो पिक्चर्स हैं, एक में हमने सर्किट बना रखा है और एक में रियल सोलेनॉइड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रेड कलर का इंसुलेटेड कॉपर वायर है वो एक आयरन रॉड के ऊपर रैप किया है और नीचे सर्किट से कनेक्टेड है। नाउ दिस सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ वी हैव फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लगता है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। A current carrying conductor exerts a force when a magnet is placed in its vicinity. Okay, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसके आसपास हम एक मैग्नेट को रख देते हैं। Similarly, a magnet also exerts equal and opposite force on the current carrying conductor. अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेट रखते हैं तो जितना फोर्स कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है सेम फोर्स एक मैग्नेट उस कंडक्टर पे अप्लाई भी कर रहा है।
Okay, this was suggested by Marie Ampere, a French physicist and considered as founder of science of electromagnetism. Okay, so Marie Ampere is the father of electromagnetism. He was the one who discovered electromagnetism, solenoids, and all these systems working on electromagnet. The direction of force over the conductor gets reversed with a change in the direction of flow of electric current. जितनी बार हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज करेंगे उतनी बार हमारे कंडक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा. It is observed that the magnitude of force is highest when the direction of current is at the right angles to the magnetic field. जब मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्रीज और राइट एंगल्स में जब करंट फ्लो होता है तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कंडक्टर दैट टाइम द फोर्स इज द highest one. So the force on any conductor due to magnetic field that can be studied by the Fleming's left hand rule. Now what is Fleming's left hand rule? Obviously अगर हम left hand rule की बात कर रहे हैं तो जो भी हम इसमें रूल्स यूज़ करेंगे या स्टडी करेंगे हम अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स का यूज़ करके इसको स्टडी करेंगे. So let's start with it. If the direction of electric current is perpendicular to the magnetic field, the direction of force is also perpendicular to both of them. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड वन इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द force. Okay, so what are the three things we are going to study in Fleming's left hand rule? Current, magnetic field and force. Okay, the Fleming's left hand rule states that if the left hand is stretched in a way that the index finger, the middle finger and the thumb are in mutually perpendicular directions. अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करें, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, the third finger and the thumb, okay, they should be in mutually perpendicular direction. जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, थंब का जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज के एंगल पे आपका इंडेक्स फिंगर है, उसके 90 डिग्री एंगल पे आपका मिडिल फिंगर है. जब ये तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं देन ओनली द इंडेक्स फिंगर and the middle finger of the stretched hand show the direction of magnetic field and direction of electric current. Okay, आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, आपका जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका थंब है वो इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, एंड दिस इज़ ओनली टू बी डन बाय द लेफ्ट हैंड. ऐसा नहीं है कि हम हैंड चेंज कर लेंगे तो रूल सेम रहेगा. नो, वी हैव डिफरेंट रूल्स फॉर बोथ द हैंड्स, सो यू हैव टू यूज़ ओनली लेफ्ट हैंड. ओके, एंड व्हाट इज़ द कंडीशन? यू हैव टू स्ट्रेच दीज फिंगर्स एंड दे शुड बी इन mutually perpendicular directions to each other, then only it is going to work. So that's all for this video. I hope you have understood each and every topic of this. Okay, so it was only just for this video. In the next video we will talk about electric motor, electric generator and the domestic electric circuits, and this will be, the next video will be the last part of this chapter number 13. इसके पहले दो videos और हैं, this one and the part 1. So if you want to cover the full chapter, you have to go through all these 3 videos. अगर हम सिर्फ कोई एक पार्ट देखेंगे तो हमें chapter समझ में नहीं आएगा. So stay tuned and keep watching and watch the next video also. Thank you so much.